احبار 11واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں، تم ان کو کھاؤ، مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں، ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافان کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ بھی چگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سوار کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں، تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں، لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا۔ پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے، سو یہ ہیں عقاب اور استخوان، خوار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردہ رینگنے والے جاندار جتنے چار پاؤں کے بل چلتے ہیں، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ مگر پردہ رینگنے والے جانداروں میں سے جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں، تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سولیام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پردہ رینگنے والے جاندار جن کے چار پاؤں ہیں، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے، وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب چار پائے جن کے پاؤں الگ ہیں، پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چگالی کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے، وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون
और गो और छिपकली और सांड और गिरगट, सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरें, वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए, तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो, तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो, तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और वो तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो, वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे, तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और उसके बाद उनकी लाश में से कुछ हिस्सा उस पर गिरा हो, तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए, तो जो कोई उसकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पांव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पांव होते हैं, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है, अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है, अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूं। और तुमको मुल्के मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरह यही है, ताकि पाक और नापाक में, और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते, उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। अहबार 12वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, जैसे हैज के अय्याम में रहती है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे न हो, तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। और अगर उसके लड़की हो, तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी, जैसे हैज के अय्याम में रहती है। इसके बाद वो
66 दिन तक तहारत के खून में रहे, और जब उसकी तहारत के अय्याम पूरे हो जाएं, तो खा उसके बेटा हो या बेटी, वो सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए, और काहिन उसे खुदावंद के हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे। तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत का लड़का या लड़की हो, उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो, तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे या एक सौख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। अहबार 13वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पिपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो, और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन हैं किसी के पास ले जाएं, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उसकी बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोढ़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो, पर खाल से गहरा ना दिखाई दे, और ना उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल न गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे फिर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसकी बला की चमक कम है और वो जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पिपड़ी है। सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजा के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था, वो पिपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो पिपड़ी जिल्द पर फैल गई है, तो वो उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है। अगर किसी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो, तो उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि जिल्द पर सफेद वर्म है और उसने बालों को सफेद कर दिया है, और उस वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है। सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद न करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए, और जहां तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सिर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ हो, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफेद हो गया है और वो पाक है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे, वो नापाक होगा, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त
फिर कर सफेद हो जाए, तो वो काहिन के पास जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफेद हो गई है, तो काहिन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए, और फोड़े की जगह सफेद वरम या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है, और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहिन देखे कि उस पर सफेद बाल नहीं, और वो खाल से गहरा भी नहीं है, और उसकी चमक कम है, तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल ना जाए, तो वो फोड़े का दाग है। पस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए, और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग या बिल्कुल ही सफेद दाग बन जाए, तो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफेद हो गए हैं, और वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफेद बाल नहीं, और ना वो खाल से गहरा है, बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे, और जिल्द पर फैला हुआ ना हो, बल्कि उसकी चमक भी कम हो, तो वो फक्त जल जाने के बायस फूला हुआ है, और काहिन उस शख्स को पाक करार दे, क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सिर या ठोड़ी में दाग हो, तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है, और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो साफा है जो सिर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती, और उस पर स्याह बाल नहीं है, तो काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे। और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा फैला नहीं, और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं, और साफा खाल से गहरा नहीं मालूम होता, तो उस शख्स के बाल मूंढे जाएं, लेकिन जहां साफा हो वो जगह ना मूंढी जाए, और काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज काहिन साफा का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा जिल्द में फैला नहीं, और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे, और वो अपने कपड़े धोए और साफ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो काहिन उसे देखे, और अगर साफा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नजर आए,
تو काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे, क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसका साफा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों, तो साफा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है और काहिन उसे पाक करार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफेद चमकते हुए दाग हों, तो काहिन देखे, और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माइल सफेद रंग के हों, तो वो छिप है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सिर के बाल गिर गए हों, वो गंजा तो है मगर पाक है। और जिस शख्स के सिर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों, वो चंदला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चंदले सिर पर सुर्खी माइल सफेद दाग हो, तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदले सिर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सिर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है, तो वो आदमी कोढ़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। पस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, खा वो ऊन का हो या कैतान का, और वो बला भी खा कैतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कैतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है, या चमड़े की उस चीज को जिसमें वो है, जला दे, क्योंकि ये खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर नहीं आती, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला धोएं, और वो फिर उसे और 7वें दिन तक बंद रखे। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है। तो उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, खा उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंके। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है, पस तू उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने
या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रही है, तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या कितान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोढ़ की बला हो तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरह यही है। अहबार 14वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरह है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है, उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जुफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और उनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सिर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीजों को जो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नजदीक लाए, और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मकदस में उस जगह ज़िबा करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो कुछ पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक
करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावन के हजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो, तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले, ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए। और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो। उन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावन के हजूर लाए। और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावन के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे, और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठा पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावन के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे, वो उसे उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावन के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावन के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरह ये है। फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कैनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला को भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे।
अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लाकर लगाएं, और काहिन ताजा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। मां सवाए इसके, अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो, तो वो शाम तक नापाक ठहरेगा। और जो कोई उस घर में सोए, वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए, वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की इस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे, तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए, और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए, और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरह ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरह यही है। अहबार 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो, तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए, वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे, वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए, वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे, तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस ज़ैन पर
जिरियान का मरीज सवार हो, वो ज़ेन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए, वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को जिरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जिरियान का मरीज छुए, वो तोड़ डाला जाए, पर 24 बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जिरियान के मरीज को शिफा हो जाए, तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावन के हजूर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर जाए और उनको काहिन के हवाला करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जिरियान के सबब से खुदावंद के हजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो, तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए, वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोहबत करे और मुंजिल हो, तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहें। और अगर किसी औरत को ऐसा जिरियान हो कि उसे हैज का खून आए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए, वो चीज नापाक होगी। और जिस चीज पर बैठे, वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो, और उस वक्त कोई उस चीज को छुए, तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोहबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत के अय्यामे हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए, या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा, तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है। वो नापाक है। और इस जिरियाने खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी, वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी, वो चीज हैज की निजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई उन चीजों को छुए, वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जिरियान से शिफा पा जाए, तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए।
اور काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसको नापाक खून के जरियान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इसराइल को उनकी निजासत से अलग रखना, ताकि वो मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी निजासत में हलाक ना हों। उसके लिए जिसे जरियान का मर्ज हो, और उसके लिए जिसकी धात बहती हो, और वो उसके बायस नापाक हो जाए, और उसके लिए जो हैज से हो, और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरियान का मर्ज हो, और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोहबत करे, शरा यही है